being engineers, this is what we're supposed to do. I got the opportunity to visit NASA when I was in my 10th standard. हम लोग finalists, we were one of the 8 finalist teams from the world. So हमारा काम ये था कि we were supposed to design a colony in space. So this is a view of Kennedy Space Center. बिल्कुल नीचे you can see rocket thrusters for the Discovery Space Shuttle. और बिल्कुल जो बिल्कुल horizon पे आप देख रहे हैं, that is actually Discovery Space Shuttle being ready for launch. It was a pretty cool place to be. उस टाइम मुझे फैशन में थी, so you can't blame me. So this is me. पीछे भी एक स्पेस शटल के का इंटरनल मतलब नासा ने यहाँ पे डिस्प्ले के लिए लगाया हुआ है. So what inspired me to get into robotics was जब मैं छोटा था तो मैंने आइजैक एसिमोव और बहुत सारी साई-फाई बुक्स पढ़ी थी. Even then कुछ मूवीज आने लगी थी जो कहती थी कि 50 years in the future we'll have robots everywhere, we'll have technology, we'll have flying cars everywhere. So I thought this is amazing and it really fascinated me. उसके बाद other inspirations as I went through this field was WALL-E ka. I think most of you know. How many of you have seen WALL-E? Did you like it? So talking about what actually is robotics. Robotics is a very very vast field. I can't say कि robotics is just one science कि आप ये सब्जेक्ट कर लीजिए तो आपको सब कुछ आ जाएगा. I think it's more vast than any other field because इसके अंदर you have two basic components. The first is the controller and the second is the actuator. The controller acts as a brain. जो हमारे ह्यूमंस के टर्म्स में जो ब्रेन का फंक्शन होता है वो एक कंट्रोलर करता है. और एक एक्चुएटर इज लाइक muscular work, taking something, picking it up or doing something, that is known as an actuator. So what exactly is a controller? एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है और उसके अंदर एक मेमोरी यूनिट होता है. प्रोसेसिंग यूनिट is a processor. Could be 8, 16, 32 or 64 bit. Generally notebooks में you have embedded, they're basically embedded systems. आप में से कितने लोगों को embedded systems के बारे में पता है? Okay, anything जैसे this is a computer, right? इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है. Dual core या फिर Core i5, i7, they're like huge processors. But एक embedded system is a smaller unit. Like आपका प्रोजेक्टर है, इसके अंदर एक embedded system लगा हुआ है. इसके अंदर भी प्रोसेसर है, but it's not as fast as a computer. So when we are talking about a robot, it has its processor. The bigger the processor, the more computing you can do, obviously. I am assuming कि आप सब लोग बिल्कुल freshers हैं, so this is going to be a really basic introduction to robotics. So how many of you are interested in robotics? Alright. So when you say you're interested in robotics, what is it that fascinates you? या फिर आपने क्या ऐसे imagine किया कि क्या होएगा क्या उसके अंदर? Can anybody answer me? कुछ और जैसे we can operate each and everything without any wireless. Yeah. Right. That is one fine point. Anybody else? Anybody जिसके दिमाग में कोई idea हो कि काश हम ये कर सकते होते? Robotics is the next level of a toy. Okay. So you can do anything. Robotics is what which you can control, you can make. It's a basic level of a machine. If you want to make a large nuclear kind of something, some kind of machine, you have to start from the root level. And I believe robotics gives you that. All right. That is a good point. You should get a doctorate for that. ये बात एक लेते हैं. So he's right. Robotics. But for me, what robotics is embedded systems को लेके जाके आप
एक बहुत छोटे लेवल से भी, तो किसी बिल्कुल छोटी सी एप्लीकेशन से लेके किसी बहुत बड़ी एप्लीकेशन, जनरली रोबोट्स यूज वहाँ पे होते हैं जहाँ पे ह्यूमंस नहीं आ सकते बीच में, लाइक मे बी कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया, तो अगर कोई ह्यूमन जाएगा तो ही विल बी एक्सपोज्ड टू लॉट ऑफ रेडिएशन, सो यू कैन नॉट अलाउ दैट बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज मच मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग एल्स। तो वहाँ पे या स्पेस एक्सप्लोरेशन या मे बी कुछ भी एनी काइंड ऑफ सिस्टम वेयर human interaction should be limited because it's dangerous, that is where robotics comes into play. So आपने आज 3 वीडियोस देखी, ठीक है, थोड़ी देर पहले तीनों में रोबोट्स यूज हो रहे थे। जो वो इल्यूजन टाइप थी, पीछे 2 रोबोट्स ऑन स्क्रीन को मूव कर रहे थे अलग अलग एंगल्स पे, ठीक है। जो वो आर्म बैंड था वो भी रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा था, और तीसरी जो कोडिंग व्हाई यू शुड लर्न टू कोड, उसमें भी रोबोट्स कंट्रोल हो रहे थे जो कार्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे। एक और बहुत कूल वीडियो जो मैं जीवितेश की टॉक के बाद दिखाऊंगा, उसमें काफी रोबोट्स हैं। तो इसके अंदर जो हमारा प्रोसेसर होता है उसका आर्किटेक्चर होता है। बाय आर्किटेक्चर आई मीन कि इसके अंदर डेटा कैसे एक्सचेंज होता है या कैसे फ्लो करता है, उसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो आप जो स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ देम यूज आर्म के प्रोसेसर्स, which is a disk-based processing, but I think I'll skip over that. So the second part is the memory unit. आपका जो सेंसर से डेटा आएगा, ये भी आपको देखना है कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, so it wants to know where it is. तो उस केस में कोई जीपीएस से डेटा आ रहा होगा उसके पास, तो वो डेटा कहीं ना कहीं पे स्टोर होना चाहिए कैलकुलेशन होने से पहले। अगर उसको नेक्स्ट स्टेप देना है तो उसको ये बताना चाहिए कि मेरे थोड़ा डिस्टेंस लेफ्ट में एक वॉल है, अगर मैं उस साइड में जाऊंगा तो मैं कोलाइड कर पाऊंगा, तो इट हैज टू टेक अ स्टेप देयर, राइट। सो ऑल दैट कंप्यूटेशन इज डन यूजिंग कंट्रोलर्स और एक्चुएटर्स के बीच में वी हैव दिस फील्ड ऑफ सेंसर्स। सेंसर्स आपको पता है काफी टाइप के हो सकते हैं, लाइट में लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, ऑप्टो ट्रांजिस्टर, फोटोडायोड्स। किसी को पता है इन चीजों के बारे में? अगर आपको नहीं पता तो यू कैन आस्क मी। यू वांट टू नो व्हाट दे आर? सो द नेक्स्ट आर द पोजीशन सेंसर्स, जीपीएस, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स या फिर आईआर बेस्ड। जीपीएस में एज यू नो 3 सैटेलाइट्स होती हैं, ट्रायंगुलेशन के थ्रू आपका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पता चल जाता है। अल्ट्रासोनिक में साउंड निकलता है, साउंड रिफ्लेक्ट होकर आपको बताता है कितनी दूर है किसी चीज़ से। एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलेरोमीटर्स, जायरोस्कोप्स, जैसे आपके फोन्स में अगर आप उसकी ओरिएंटेशन टिल्ट करते हैं 90 डिग्री तो स्क्रीन भी रोटेट होती है, तो आपके फ़ोन के अंदर भी एक्सेलेरोमीटर्स एंड जायरोस्कोप्स दोनों लगे। और भी बहुत सारे सेंसर्स हैं, जैसे फायर डिटेक्शन के लिए, प्रेशर मैनेजमेंट, लॉट ऑफ अदर। मतलब हमारे पास सेंसर्स हैं टू मेजर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सो this means that you can create any robot to do anything, which is a huge thing, you know। इसका मतलब है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ये ब्रांड न्यू फील्ड है which is being charted right now, right? मतलब लोग इसको अभी डिस्कवर कर रहे हैं, तो ह्यूज पोटेंशियल। RF इज रेडियो फ्रीक्वेंसी। अगर आप वायरलेसली किसी रोबोट को कंट्रोल करना चाहते हो तो हो सकता है कि आप उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर वाईफाई या किसी और मीडियम के थ्रू उसको कंट्रोल करो। IR मीन्स इंफ्रारेड। ऑप्टो ट्रांजिस्टर्स दे बेसिकली फॉर्म ऑफ, आपको ट्रांजिस्टर्स के बारे में पता है? तो जब लाइट पड़ती है किसी सिलिकॉन वेफर के ऊपर तो उसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, राइट। तो ऑप्टो ट्रांजिस्टर भी सेम कैटेगरी में होता है। जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो करंट is allowed to conduct, otherwise you stop. Actuators में basically motors होती है। Motors काफी different types की हो सकती हैं। DC motors में 3 से लेके 400 volts तक की। इस DC motors में आपके tape recorders में जो आपकी हार्ड डिस्क हैं उसके अंदर जो रोटेट करता है, all of those are DC motors। तो डीसी मोटर सबसे सस्ती होती है। अगर आप एक हॉबी प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो यू प्रोबेबली बाय अ डीसी मोटर 9 वोल्ट या किसी 100-200 आरपीएम की।
उसके बाद होती है ब्रशलेस डीसी मोटर्स। इसके अंदर अगर आपको क्वाडकॉप्टर बनाना है या फिर हेलीकॉप्टर्स बनाने हैं, अगर आपको एरियली आपको देखना है कि ट्रैफिक कैसे मैनेज हो रहा है, तो आप एक क्वाडकॉप्टर बनाओगे, उसके ऊपर कैमरास लगा दोगे और वो देखेंगे इमेज, तो देखेंगे कि कैसे ट्रैफिक आ रहा है। तो उस केस में यू नीड ब्रशलेस डीसी मोटर। एंड सर्वो मोटर सबसे ज़्यादा सही होते हैं क्योंकि वो एग्जैक्टली आपको बताते हैं। अगर उसको कहोगे कि 90 डिग्रीज मूव करो तो वो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज मूव करेगी। तो उस सेंस में जब आपने मूवीज में देखा होगा वॉली में, तो वो अपना आर्म रेज करता है, तो हाउ डज इट नो कि एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पे जाना है? सो देयर इज अ सर्वो मोटर दैट इज बिल्ट इनसाइड इट, जो उसको बताता है कि दिस इज 90 डिग्रीज, राइट? मैंने आपको पहले बताया था कि रोबोटिक्स इज अ वेरी वास्ट फील्ड। व्हाई डू आई से इट इज वास्ट? बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी साइंसेस इन्वॉल्व हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, 3 मेन साइंसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी कंट्रोल थ्योरी, which you will probably encounter in your 3rd year, circuit designing की 3rd and 4th year, और sensors and motor handling ये आप मतलब अगर इंटरेस्टेड हैं तो you can start any time, but control theory is a pretty complex advanced topic. So कंट्रोल थ्योरी में आपको बताता है कि किसी ने देखी है कोई सेल्फ ड्राइविंग कार गूगल ने जो निकाली थी, अपने वीडियो में देखी थी। तो जब कोई रोबोट आपने देखा होगा वो खुद ही अपने आप से ट्रैवल कर रहा होता है, तो मतलब यू डोंट नीड टू गिव इट एनी इंडिकेशंस कि आप कहाँ जा रहे हो। तो हाउ डज इट नो कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है? उसके पीछे जो साइंस है दैट इज कंट्रोल थ्योरी। सो अगर आप सब लोग, अगर if there is anybody who really wants to get into this field, then my suggestion to you is don't go in for simple things like एक लाइन फॉरवर्ड बना लिया है, कुछ कर लिया, because that is वो तो सदियों पुरानी टेक्नोलॉजी है। nobody is going to pay you। अगर आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तो उस चीज़ का आपको क्या फायदा होगा, किसी को क्या फायदा होगा कि लाइन फॉरवर्ड का, राइट? सो यू नो, think big। You actually need to learn a lot of stuff to make a complete robot। So अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कोर्सेरा, यूडासिटी। आप कोई अगर आप यूडासिटी का एक कोर्स आता है सेबेस्टियन टून का, बट आई वुड सजेस्ट कि इस स्टेज पे उसको मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल है, बट when you're in your 3rd or 4th year you can go into that। कंप्यूटर साइंस में जनरल प्रोग्रामिंग, यू नीड टू नो प्रोग्रामिंग बिकॉज एक रोबोट को आप देखना चाहते हैं कि वो रोबोट कैसे काम करेगा, तो यू नीड टू डिफाइन अ बिहेवियर, और वो बिहेवियर आप डिफाइन करोगे प्रोग्राम के थ्रू। सो ये प्रोग्राम मल्टीपल लैंग्वेजेस में हो सकता है, C++, पाइथन, डिपेंड्स ऑन जो आपका कंट्रोलर है वो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस में एक और भी सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, which is now playing a huge role in the most advanced robotic softwares। अगर आप किसी एडवांस रोबोट के सामने आते हो तो भी ग्रीन, या अगर आप अपना फ़ोन चलाते हो तो आपने देखा होगा कुछ फ़ोन्स में फेशियल डिटेक्शन नाम की एक चीज़ है। तो हाउ डू यू थिंक फेशियल डिटेक्शन वर्क्स? कैन एनीबॉडी टेल मी? अरे डोंट फील शाय बिकॉज यू नो 4 साल पहले मैं भी अपनी प्लेस में ही था। If I would have asked more questions at that stage, you know, I would know a lot more than I do now. So don't worry, I'm here। आप कोई गलत जवाब, कोई सही गलत, nobody is judging you here। So no। Image processing, all right। So image processing, yeah। Basically what it does is first time it measures the distance from the camera, और फेस पे पॉइंट्स होते हैं तो वो उनको मेजर कर लेता है। नेक्स्ट टाइम इट क्रॉस रेफरेंसेस फ्रॉम दैट डिफरेंट पॉइंट्स, एंड देन इट क्रॉस रेफरेंसेस विद द डेटाबेस कि वो पॉइंट्स पे आ रहा है कि नहीं, एंड एवरी फेस हैज डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा। ओके, सो व्हाट ही इज सेइंग इज कि एक आपके पास कैमरा लगा हुआ है, वो आपके फेस के कुछ पॉइंट्स को नोट करेगा और वो डेटाबेस में डाल देगा। जब भी सेम पॉइंट्स आएंगे तो डेटाबेस से उठा लेगा और बोलेगा कि ये आपका फेस है। बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, बिकॉज एक फेस
कभी से 1 मीटर दूर हो सकता है, कभी वो 0.3 मीटर दूर हो सकता है, कभी वो 100 मीटर दूर हो सकता है। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं कि आप सेम ही फेस को देख रहे हो डिफरेंट एंगल से। तो एक कंप्यूटर को कैसे समझ आएगा कि वो क्या चीज़ कर रही है? तो इस चीज़ को समझने के लिए मशीन लर्निंग एक साइंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होती हैं। सेम चीज़ को कंप्यूटर जैसे हम अपने किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर वे में एक रोबोट भी सीखने की कोशिश करता है। सो द थर्ड इज मैकेनिकल साइंस में काइनेमैटिक्स की एक रोबोटिक आर्म को अगर मे बी इस माइक को पकड़ना है, देयर आर इनफाइनाइट वेज आई कैन एक्चुअली रीच दिस माइक। अगर मैं सीधा जाता हूँ तो मैं सीधा पकड़ सकता हूँ, अगर मैं ऐसे जाके पकड़ूँ तो भी मैं पकड़ रहा हूँ, अगर मैं ऐसे जाके पकड़ूँ तो भी पकड़ रहा हूँ, राइट? सो विच इज द मोस्ट ऑप्टिमल पाथ? आपको इतने सारे मल्टीपल चीज़ों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। सो उस केस में मैकेनिकल साइंस आपकी इन्वॉल्व होता है। The importance of things, computation काफ़ी important है as a component, तो सबसे ज़्यादा important है जो डिज़ाइन कर रहा है एक रोबोट को, उसकी कितनी नॉलेज है। अगर आप एक स्लो प्रोसेसर भी यूज़ करते हो बट एक काफ़ी इंटेलिजेंट प्रोग्रामर है, so we can make an amazing program out of that, right? So I guess अगर आप if you go into this field or any field as such, you need to be extremely knowledgeable and you need to know कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको यूज़ करनी चाहिए, राइट? ये आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद आएगा, बट बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको तब आएगा अगर आप स्टार्ट करोगे। एंड फ्रैंकली आई वर्कड in an MNC for like 9 months. मैं अभी पिछले साल प्लेस हुआ था, तो I worked for 9 months, but I realized that people there are really dumb, and so if you actually want to do something, you will need to break out of that circle. When you meet new people and you see कि they cannot think in parallel ways, they cannot say, मतलब उनका दिमाग उतना अगर नहीं चलता तो you need to get out of that. But you need to make yourself इतना ज़्यादा competent कि आपको फर्क ना पड़े कि अगर आपके पास initial income नहीं आ रही, आपके पास कुछ नहीं आ रहा, तो you need to know कि you can do it, because frankly without making money it's really hard. अगर आपको रोबोट्स बनाने हैं तो आपको ये सब टूल्स चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सोल्डरिंग आयरन चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कंपोनेंट्स चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यू नीड टू रीड बुक्स और कोई कोर्स करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे तो है नहीं कि आपने मटेरियल दे दिए तो अपने आप एक रोबोट बन जाएगा, राइट? ऐसी कभी नहीं होता। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अगर रोबोट बनाओगे तो उसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कोई ना कोई लैंग्वेज या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे केपी ने आपको पहले बताया था कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है, आई गेस मोस्ट ऑफ यू नो, राइट? डू यू नो, राइट? आपकी एंथुसियाज्म काफ़ी कम है, राइट? नहीं, आर यू पेइंग अटेंशन ऑल ऑफ यू? ऑलराइट। So, जब आप कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो यू नीड टू मेक श्योर कि उस लैंग्वेज को यूज़ करने के पीछे जो कम्युनिटी है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बाय स्ट्रॉन्ग आई मीन कि अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होती है तो आप अगर कोई क्वेश्चन कहीं पे डालोगे तो आपको डालने की जरूरत ना पड़े, किसी ने पहले से आंसर किया हो। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या स्टैक ओवरफ्लो पे तो किसी ने ऑलरेडी प्रोबेबली मतलब 99% ऑफ द टाइम आपका क्वेश्चन somebody has already gone through that phase and ask that question. So आपको बहुत सारा टाइम बचेगा उसके इसमें। जो आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे उसको यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कि वो प्रोसेसर फ्रेंडली है या डेवलपर फ्रेंडली है, एम्बेडेड सिस्टम्स में स्पेशली, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि मैं पाइथन यूज़ करूँगा एक अल्ट्रासोनिक रेंज सेंसिंग के लिए, तो मुझे बहुत कम कोड लिखना पड़ेगा। मे बी एक ही लाइन में मैं अपना कोड लिखूँ, just one line of code, right? That depends on how good you are at programming. But supposing I use just one line of code, so एक Python is built up on C and C++, right? Python is a high level language, C++ उससे कम होती है, उससे भी नीचे assembly languages होती हैं।
और उससे भी नीचे होती है आपकी मशीन लैंग्वेज विच प्रोसेसर अंडरस्टैंड विच इज जस्ट बेसिकली वंस एंड जीरोस, राइट? तो अगर आप पाइथन में कोड लिखेंगे उसको जो एक आपकी मशीन है उसको कन्वर्ट करेगा वो